Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of class 9th IT. Students, in this video, I am going to teach you about the topic Microsoft Excel 2010, that is spreadsheet program. Students, in previous video, we have discussed about the spreadsheet program, that is, it is a program that make organize the data and manipulate the data in a tabular form of row and columns. We can also doing calculation like arithmetic calculation, scientific calculation, and financial calculation in Microsoft Excel as well. So Microsoft Excel is a type of data spreadsheet software. It allow you to make quick and accurate numerical calculation and helps us to make our data look sharp and professional. The user for Excel are limitless because it is a very popular spreadsheet software than other program. For creating financial report, scientists use Excel for static analysis and families use Excel to help manage their invest portfolios. If you are moving from Excel 2003 to Excel 2010, we will see that Excel has undergone a major redesigns. जब आप 2003 से 2010 तक मूव करेंगे एक्सेल के वेरियस वर्जन में तो देखेंगे कि उसका जो इंटरफेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं. You will still the familiar with much of the program's functionality, but you will notice a completely new user interface and many new features that have been added to make using Excel more efficient. For example, जहाँ पे 2003 में हम लोग सिर्फ मेनूज़ के बारे में जानते हैं, फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, तो वहीं 2007 में आप जानते हैं फाइल मेनू की जगह पे एक ऑफिस बटन आ जाती है और फिर 2010 में वो ऑफिस बटन रिप्लेस हो जाती है एक दूसरे फाइल मेनू से और इसमें एक बैक स्टेज व्यू भी इंक्लूड हो जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल study about the Microsoft Excel 2010 program screen and many more. Let us start our chapter. First of all, we will learn how to starting Excel 2010. Students, for starting Excel 2010, we will click on start button. सबसे पहले आप क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे जो टास्क बार पे सबसे लेफ्ट साइड में होता है. तो जब हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू इस तरह से ओपन होता है और 2007 में भी चाहे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ 7 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो दोनों में आपका इस तरह का इंटरफेस होता है. और उसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 प्रोग्राम लिस्ट में जहाँ भी दिखाई दे वहाँ पे क्लिक करके हम लोग अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं. या फिर एक दूसरा भी टिप्स होता है कि अगर हम लोग चाहें फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करना ओपन करना तो एक इसका शॉर्टकट हम लोग टास्क बार पे नीचे बना देते हैं और वहाँ से आप राइट क्लिक करके जब चाहें तब ओपन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, विंडोज़ 2010 में इसका जो वर्जन होगा तो उसका जो स्टार्ट मेनू का जो भी इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. वहाँ पे हम लोगों को प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा करके ढूंढ के फिर ओपन करना पड़ता है. स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट्स न्यू इन एक्सेल 2010. स्टूडेंट्स, एक्सेल 2010 में क्या लेट अस सी व्हाट्स न्यू इन एक्सेल 2010. स्टूडेंट्स, Microsoft Excel 2010 is very different from previous version as updated time to time. Let us see in given table. Students, first one is customized table. Students, customized ribbon. Students, जो पहला फीचर्स हम लोग Microsoft Excel में देखते हैं वो क्या है कि इसका जो रिबन है वो 2007 से
थोड़ा सा कस्टमाइज है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है. द रिबन मेक्स all the command needed to work with program readily available. The ribbon was introduced in 2007. आप जानते हैं 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद 2010 में इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया गया. नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन टैब्स एंड ग्रुप फॉर द रिबन. अब हम लोग चाहें तो अपना एक नया टैब भी बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में. और 2007 में ये फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं होती थी. नेक्स्ट वन इज बैक स्टेज व्यू. स्टूडेंट्स, इन दिस वर्जन one features backstage view is also provided, and it is a window which contain the option open, save, print, share and managing your file and program option. To access backstage view, click on file tab on the ribbon. अगर हम लोगों को backstage view पे जाना हो तो केवल फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे और हम लोग backstage view पे जा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्कबुक मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, वर्कबुक मैनेजमेंट, दिस न्यू टूल हेल्प यू मैनेज, प्रोटेक्ट एंड शेयर योर वर्कबुक. इससे हम लोग अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. रिकवर प्रीवियस वर्जन लेट्स यू रिवर्ट एन अर्लियर वर्जन ऑफ योर वर्कबुक. और एक ऑप्शन इसमें एक जो पाया जा रहा है दैट इज रिकवर प्रीवियस वर्जन. इससे आप अपने वर्कबुक को प्रीवियस वर्जन के फाइल में चेंज कर सकते हैं. प्रोटेक्ट व्यू हेल्प अस प्रोटेक्ट कंप्यूटर from online attack when opening files from the internet. And the trusted document feature, remember which file you trust so you are not promoted each time the file is open. Next one is paste with live preview. Students, allow you to preview how paste content will look with various paste option before you paste it. इसमें कुछ ऐसे भी कंटेंट दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि हम लोग पेस्ट ऑप्शन में हमारा कंटेंट किस तरह का दिखाई देगा. नेक्स्ट वन इज मोर थीम्स एंड स्टाइल. प्री डिफाइंड स्टाइल्स एंड थीम लेट्स यू चेंज द ओवरऑल लुक एंड फील वर्कशीट इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स. नाउ ऑफिस 2010 हैज इवन मोर थीम्स यू कैन अप्लाई टू योर डॉक्यूमेंट. इसमें हम लोग को और सारी स्टाइल और थीम मिलती है जिससे हम लोग अपने वर्कबुक को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. Improved picture editing tools, accessibility checker, language tools, better conditional formatting and improved chart. These are the other features that are added in this version of Microsoft Excel. Students, now let us see what is the programming screen of our Microsoft Excel window. Students, Microsoft Excel 2010 program screen may seem confusing and overwhelm at first. The lesson will help you become familiar. सबसे पहले आप जब ओपन करेंगे तो कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए सबसे पहले आप उसके प्रोग्रामिंग विंडो के बारे में सही से आप देख लेंगे अपनी स्क्रीन पे. सबसे ऊपर ये जो ए नंबर है वो आपका फाइल टैब होता है और फाइल टैब में अभी बताए हैं बैक स्टेज भी होता है. ए नंबर देख सकते हैं जहाँ पे फाइल को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है. तो ए जो होता है फाइल टैब होता है एंड इट कंटेन बेसिक फाइल मैनेजमेंट कमांड सच एज न्यू, ओपन, सेव एंड क्लोज एंड प्रोग्राम ऑप्शन. और इसी में बैक स्टेज व्यू भी होता है. नेक्स्ट वन इज बी. बी देख रहे हैं आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे. ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है और यहाँ पे वो ऑप्शंस पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं जिनका यूज़ हम लोग करके मोर फ्रिक्वेंट कमांड ऑपरेट करते हैं. नेक्स्ट नंबर है सी. सी जो होता है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं. यहाँ पे आपके वर्कबुक का नाम, फाइल का नेम और प्रोग्राम का नेम तीनों आप यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद ये डी नंबर जो है वो कंट्रोल बटन्स होते हैं. इससे हम लोग प्रोग्राम को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और क्लोज करते हैं. उसके बाद आपका जो डी नंबर है देख सकते हैं. डी नंबर जो है यहाँ पे उसका ई नंबर देखेंगे. ई नंबर इसको हम लोग रिबन बोलते हैं. देख सकते हैं नीचे ई नंबर रिबन. द टैब्स एंड ग्रुप ऑन द रिबन रिप्लेस द मेनूज एंड टूल बार फाउंड इन प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सेल. ये रिबन्स जो हैं पिछले वर्जन में जो भी टूल्स बार और मेनूज होते हैं उनको रिप्लेस करके यहाँ पे इस वर्जन में रिबन्स को ऐड कर दिया गया है और 2007 में भी ये रिबन अवेलेबल था. नेक्स्ट वन इज एफ. एफ नंबर ही आप यहाँ दे सकते हैं अपनी स्क्रीन पे.
तो एफ क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल टू हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, और ये नीचे वाला जो दे सकते हैं वो आपका अप एंड डाउन स्क्रॉल बार होता है, यानी दो स्क्रॉल बार इसमें होते हैं, देख सकते हैं एफ नंबर को। इट यूजेस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार फ्रॉम व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्क सीट। नाउ जी नंबर इज, यू कैन सी जी नंबर इज ओवर हियर, इट इज जूम कंट्रोलर। ये जूम कंट्रोलर होता है। अगर हम लोग अपने पेज को जूम करना चाहते हैं या जूम आउट या जूम इन करना चाहते हैं तो हम लोग जूम कंट्रोल का यूज करते हैं, जूम स्लाइडर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एच। As you can see over here, these are the various views of our Excel views button, and it contains 3 button. It is normal, page layout and page break view. Next one is worksheet tab। यहाँ पे देख सकते हैं आई नंबर जो है वो वर्कशीट टैब है। सीट 1, सीट 2, सीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट इसमें होती है, और बाद में आप ज़रूरत के हिसाब से और वर्कशीट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जे, स्टेटस बार। स्टेटस बार इज डिस्प्ले मैसेज एंड फीडबैक ऑन द करंट स्टेट ऑफ एक्सेल। राइट क्लिक एंड स्टेट फॉर बार टू कॉन्फ़िगर इट। नेक्स्ट वन इज नेम बॉक्स। स्टूडेंट्स, नेम बॉक्स डिस्प्ले द एक्टिव सेल एड्रेस और ऑब्जेक्ट नेम। अब जो नेम बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे है के नंबर, इट इज़ अ नेम बॉक्स। ये जिस भी सेल में आप क्लिक किए रहते हैं, एक्टिव सेल जो भी होता है उसका नेम ये के बॉक्स, नेम बॉक्स डिस्प्ले करता है। यल वन इज, यू कैन सी इट इज अ कॉलम हेडिंग एंड रो हेडिंग। You can see your alphabet from up to down 1 2 3 4 5 6 7 and ABCD EFGHIJKL from left to right. These are the column heading, means topmost column is given by a heading A, topmost column of second is given by heading B, topmost cell of column third is given by C, etc. M is displaying over here cell, यानी सेल को डिस्प्ले करता है। और N is a formula bar, इसको हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। फॉर्मूला बार जो होता है, हम लोग करंट एक्टिव सेल में क्या इंटर कर रहे हैं वो फॉर्मूला बार पे हमको दिखाई देता है। Students, now let us see ribbon. Students, ribbon we know ribbon is made up of 3 basic components। जो ribbons होते हैं वो 3 basic components से मिलके बनते हैं। ये component कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसमें tabs। tabs जो होते हैं, commands are organized into tab on the ribbon। each tab contains a different set of command। यहाँ पे tabs देख सकते हैं, ऊपर वाली जो लाइन होती है देख सकते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, page layout, formulas, data, preview, review, etc. are the tabs, and commands are arranged in these kind of tabs. Next one is command tabs. Students, command tabs, these tabs appear by default whenever you open the Excel program। जब हम लोग Excel program ओपन करते हैं तो उस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टैब ओपन होता है उसको हम लोग कमांड टैब्स बोलते हैं। एंड इन एक्सेल द होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा, रिव्यू एंड व्यू आर द टैब्स अपीयर बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्सचुअल टैब्स। स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्सचुअल टैब्स जो होते हैं ये बाद में क्रिएट होते हैं जब हम लोग कोई पिक्चर, कोई डिज़ाइन इंसर्ट करते हैं। कॉन्टेक्सचुअल टैब अपीयर वेन एवर यू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और इवन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। The tabs offer command relative to only that object or task। और इसमें वो कमांड होते हैं जो उस टास्क के लिए यूज में लाए जाते हैं। अब नेक्स्ट रिबन में होता है ग्रुप। स्टूडेंट्स, कमांड फाउंड ऑन ईच टैब आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड। यानी हमारे रिबन में जो भी कमांड पाए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिफाइन किए रहते हैं, और सारे कमांड उस ग्रुप से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं, वो उस टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, द फॉन्ट ग्रुप कंटेन कमांड यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग फॉन्ट, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब ये जितने भी फॉन्ट का हमने अभी नेम लिया है वो सब फॉन्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होते हैं, और वो फॉन्ट टैब में पाए जाते हैं। जैसे बोल्ड ले लें, इटैलिक ले लें,
ठीक है, अंडरलाइन ले लें, तो ये सभी जो होते हैं वो फॉन्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। और इन सब का यूज, तीनों का आप जानते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, तीनों का यूज फॉन्ट को फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज फाइल टैब। फाइल टैब appears in the upper left corner of the program window। स्टूडेंट्स, फाइल टैब जो होता है वो प्रोग्राम विंडो में सबसे ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर में पाया जाता है। व्हेन क्लिक्ड इन इट ओपन्स बैक स्टेज व्यू। जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो बैक स्टेज व्यू ओपन होता है, विच इज वेयर यू फाइंड कमांड फॉर बेसिक फाइल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग न्यू। और इसमें फाइल टैब में कई सारे कमांड प्रिंट होते हैं जो बेसिक नीड के होते हैं, जैसे सेव एज, ओपन, क्लोज, रीसेंट, न्यू, प्रिंट, शेयर एट्सेट्रा। यानी और ये जो फाइल टैब होता है, हम लोग पिछले वर्जन में जो ऑफिस बटन होता था वहाँ से इसको रिप्लेस किया गया है, आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। इसको जब देखेंगे तो यानी फाइल टैब रिप्लेसेस द फाइल मेनू एंड ऑफिस बटन फाउंड इन प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सेल। नेक्स्ट वन इज क्विक एक्सेस टूल बार। तो वही बताए हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है यहाँ पे। और क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसे टूल्स होते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली बार बार यूज़ करना चाहते हैं और उसको जा करके मेनू में या टैब में ढूंढना नहीं चाहते हैं। तो क्या बताएंगे, द क्विक एक्सेस टूल बार appears टू द राइट ऑफ द फाइल टैब एंड प्रोवाइड इजी एक्सेस टू कमांड यू यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली। यानी ये हम लोगों को ऐसे टैब जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उनके लिए इजीली एक्सेस ये प्रोवाइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट द सेव, अंडू, रीडू बटन appear on the toolbar. However, we can customize this toolbar to meet your needs by adding or removing buttons. Students, now let us see some command shortcuts. Students, आइए कुछ कमांड शॉर्टकट के बारे में स्टडी करते हैं। Students, without a doubt, keystroke shortcut are used for doing fastest way of giving command in Excel. They are especially great for issuing common commands such as saving a workbook. In order to commanding using a keystroke shortcut, you simply press a combination of key on your keyboard. For example, you can see in table 1.2, Control plus O. This is a shortcut key used for opening a वर्कबुक। अगर हम लोग अपने वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ओ की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे और उसके बाद एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें से हम लोग जो भी वर्कबुक सेव रहती है पहले से उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन, ये हम लोग न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एस इज यूज फॉर सेविंग द करंट वर्कबुक। कंट्रोल प्लस पी इज शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग द वर्कशीट। कंट्रोल प्लस बी इज शॉर्टकट की फॉर बोल्ड फॉन्ट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस आई इज यूज फॉर इटैलिक। कंट्रोल प्लस C is used for copy the selected text or object. Control plus X is used for cut the selected cell text or object. Control plus V is used for paste the selected cell text or object. Control plus Home is used to move the cell pointer to the beginning of the worksheet. And Control plus End is used to move the cell pointer to the end of the worksheet. Students, our next topic is key tips which will we study in our next video. So that's it from my today's video. In my next video we will study about more topics and more about the Microsoft Excel 2010. Until then, have a great day.